چیئرمین اور اپنی وزارت کی طرف سے میں یہ یقین دہانی ان ساتھیوں کو کرواتا ہوں کہ وہ معاملہ جو کئی سالوں سے لٹکا ہوا ہے ان کو اگلے 2 ہفتے کے اندر ہم حل کروا کے ان کو یہ خوشخبری جلد از جلد دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شفاف نظام بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے اگر معاملات او ایم سی اور ڈیلروں کے درمیان سیٹل نہیں ہوتے تو 2 ہفتے کے بعد ہم دوبارہ ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بھرپور بیٹھیں گے. اثر نو کھلے دل اور دماغ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. وفاقی حکومت اور پیٹرول پمپ مالکان ایسوسی ایشن کے مذاکرات کا دوسرا دور کامیاب. پیٹرول پمپ مالکان ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال مؤخر کر دی گئی. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ایسوسی ایشن عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا کہ 2 ہفتوں میں پیٹرولیم ڈیلرز کے مسائل حل کریں گے. ڈیلر مارجن کے حوالے سے سمری کابینہ میں پیش کی جائے گی. یومیہ قیمتوں کا معاملہ 2 ہفتوں کے لیے ہے. 2 ہفتوں بعد پیٹرولیم تنظیموں کے ساتھ دوبارہ جائزہ لیں گے. قیمتوں میں کمی کا فائدہ اور فوری عوام کو منتقل ہوگا. سیکریٹری ایسوسی ایشن نے کہا کہ حکومتی یقین دہانی پر ہڑتال مؤخر کر رہے ہیں. امید ہے 2 ہفتوں کے مارجن کا معاملہ حل ہوگا. Highly effective use of advanced autonomous systems led by Field Marshal Saeed Asim Munir and ably supported by Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar and Admiral Naveed Ashraf, our brave armed forces proved beyond any ray of doubt that Pakistan possesses not only the iron resolve to safeguard its sovereignty but also the indigenous capability, technological prowess and operational excellence. پاکستان کو جلد جدید ٹیکنالوجی میں صف اول کی قوم بنائیں گے. پاکستان اپنی خود مختاری اور دفاع کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرے گا. شہباز شریف کا انڈس ایکسپو کی تقریب سے خطاب. کہا کہ مارکہ حق میں افواج نے آٹونومس سسٹمز اور سائبر سیکیورٹی کے ذریعے سرحدوں کا دفاع کیا. دفاع میں آٹونومس صلاحیتوں کی ترقی میں نمایاں پیش رفت ہوئی. ڈرونز کی 60% سے زائد مقامی تیاری حاصل کر لی. روبوٹکس اور ڈرونز کی جدت سے معیشت مضبوط، سلامتی بہتر اور عوام کی زندگی آسان ہوگی. ٹیکنالوجی کا انقلاب صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں رہے گا. اس الیکشن میں جو آپ فیصلے کریں گے آزاد کشمیر کا مستقبل آپ کا اس الیکشن کے فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور میرا خواہش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا بہادر اور غیور عوام ایسا فیصلہ کرے کہ آزاد کشمیر کا مستقبل روشن ہو. آزاد کشمیر الیکشن مہم کے دوران نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے. بلاول بھٹو کی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب پر نام لیے بغیر تنقید. کہا کہ نون لیگ والے مشکل میں پاؤں پکڑتے ہیں، بعد میں گریبان پکڑ لیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ رائے ونڈ کا شہری جو 3 بار وزیر اعظم بنا وہ کشمیر کا وزیر اعظم بنے. لگتا ہے یہ صرف رائے ونڈ کو ہی پنجاب سمجھتے ہیں. یہ ایسے کہتے ہیں جیسے پنجاب کے ہر علاقے میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. مسلم لیگ نون کے وزیر کا جو کشمیر کے بارے میں بیان ہے وہ توبہ توبہ. نون لیگ کے قائدین نے بیان کی مذمت تک نہ کی. مطلب یہی ان کی پالیسی ہے. مہاجرین کو نمائندگی ملے گی لیکن کشمیر کا فیصلہ سندھ یا پنجاب نہیں کرے گا. یمن حوثیوں کی سعودی عرب کو دھمکیاں. پاکستان کی شدید الفاظ میں مذمت. پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ تجارت کو نشانہ بنانا ناقابل قبول قرار دیا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں کہ پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا. پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو خطرہ قومی سلامتی کے خلاف تصور کیا جائے گا.
पाकिस्तान हक़ दिफा के लिए हर जरूरी और कानूनी इक़दाम का हक महफूज रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को तबाह करने की धमकी। कहा कि ईरान अमरीकी फौजियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाएगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज पर हमला करने से गुरेज करे। ईरान ने किसी जहाज को निशाना बनाया तो पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। ट्रंप की ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी। कहा कि ईरान में नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले किए जाएंगे। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ईरान के बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार होने तक हमें कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान की सख्त बहरी नाकाबंदी कर रखी है। कोई समुद्री जहाज नहीं गुजर सकता। हौजियों ने बहीरा अहमर बंद करने की कोशिश की तो जवाब देंगे। अमेरिका अब भी ईरान के साथ मुज़ाकरात के जरिए बहरान का हल चाहता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का बड़ा दावा। कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं कर रहा। ईरान ने माजी में तयशुदा बातों पर अमल नहीं किया। अगर ईरान मुज़ाकरात में संजीदा हुआ तो अमेरिका भी संजीदगी से आगे बढ़ेगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त पर कंट्रोल चाहता है। बैन अक़वामी कानूनी निज़ाम में कोई गुंजाइश नहीं। खित्ते का मन तार तार। अमेरिका की ईरान पर 11वें रोज भी यलगार। अमेरिकी फौज की 11वीं रात ईरान पर हमले। तबरेज और सीरेक में धमाके। बोशहर, किरमानशाह और किनारक अमेरिकी बारूद की बरसात से लरज़ उठे। अमेरिकी फौज का बहरी सलाहियतों, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम ने कहा कि फोर्सेज से मुसलसल 11वीं रात ईरान में फौजी अहदाफ पर हमले किए। हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियतों को कमजोर करना है। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। कुवैत, बहरीन और उर्दन समेत कई ममालिक में अमरीकी तंसीबात निशाने पर। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कुवैत में अमरीकी रडार सिस्टम, मवासलाती निज़ाम, सैटेलाइट तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं। असलहा गोदामों और अमरीकी अफवाज के लॉजिस्टिक्स आलात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। उर्दन के अल-रुकबान में अमरीकी फौजी अड्डे पर F-15 तैयारे को मार गिराया। मुतादिद अमरीकी फौजियों की हलाकतें कार्रवाई अमरीका की जारियत के जवाब में की है। दुश्मन की किसी भी नई कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए अमरीकी फौज को खित्ता छोड़ना पड़ेगा। जौहरी तंसीबात पर हमला जंग के फैलाव का बायस बनेगा। ईरान के साथ जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर लागत आ चुकी। पेंटागन को आलमी खतरात से निपटने के लिए मजीद मुकम्मल बजट दरकार है। अमरीकी वजीर जंग सेनेट फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी के सामने पेश। जंग के लिए मजीद फंड्स का मुतालबा कर दिया। कहा कि ये वक्त अमरीकी फौजियों पर सरमायाकारी का है, न कि दिफाई खराजात कम करने का। पेंटागन को आलमी खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल बजट दरकार है। फंड्स न मिले तो खतरा होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका माशी ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादले ख़याल। मुलाकात में आमी मालियाती मंडियों तक बेहतर रसाई के लिए अमरीकी ताउन पर जोर। दोनों रहनुमाओं का ज़र मुबादला के ज़खायर और खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पर तबादला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के विजन से आगाह किया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग B- से बेहतर करके B हो चुकी है। स्टैंडर्ड एंड पोर्स की रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर रेटिंग चली गई। मशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान ने 9 साल बाद दोबारा B रेटिंग हासिल की। आलमी क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की माशी बहाली पर एक आलमी एतमाद है। मुस्तहकम आउटलुक माशी तरक्की को मजीद मजबूत करेगा।
मॉनसून बारिशों से पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा, भारत की भी आबी जारियत फिर शुरू, सिलाल डैम के दरवाजे खोल दिए, सैलाबी रीला चिनाब में हेडमराला के मुकाम पर पहुंचेगा। हेडमराला पर पानी के बहाव में इजाफा, पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक से तजावुज कर गई। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारों को पेशगी इक़दामात की हिदायत जारी। महकमा पाशी के मुताबिक नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। मुमकिना खतरे के पेश नज़र सियालकोट और वजीराबाद समेत मुतल्लिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी। PDM तर्जुमान के मुताबिक दरियाए सतलुज और रावी में बहाव मामूल पर है। सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है। मॉनसून का जोरदार स्पेल, पंजाब और KP में बारिशों ने तबाही मचा दी। दोनों सूबों में मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। पंजाब में छतें और दीवारें गिरने, करंट लगने, दीगर हादसात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में मॉनसून का जोरदार स्पेल, शहर पानी पानी हो गया। लाहौर के ज्यादातर इलाकों में बादल जमकर बरसे, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा, निकासी आप का सिलसिला ताहाल जारी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ पंजाब के शहरियों को कि आपकी वज़ीर आला पंजाब हमेशा की तरह चाहे वो कोई भी सूरत हाल हो तो वो इस पूरी सूरत हाल का जायजा खुद ले रही हैं। और ये आज की कोई मंसूबा बंदी नहीं है, बल्कि ये पिछले 8 माह से, जब से लास्ट ईयर अर्बन फ्लडिंग, रिवराइन फ्लडिंग, तीनों सैलाबी सूरत हाल थी दरियाओं में और हिल टॉरेंट्स में, तो अल्लाह का शुक्र है हिल टॉरेंट्स पे भी इस दफा कमाल मैनेजमेंट वज़ीर आला पंजाब की मंसूबा बंदी से हुई। पंजाब में रिकॉर्ड बारिश के बावजूद निकासियाब का निजाम मुअस्सर रहा, ज्यादातर जगहें क्लियर कर चुके। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की कैपिटल टीवी से खसूसी गुफ्तगू, कहा कि वाजी में कई हफ्ते पानी खड़ा रहता था मगर अब ऐसा नहीं है। पंजाब के 41 अजला में मशीनरी मौजूद है, मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हैं। सेफ सिटी के जरिए सूरत हाल की मुसलसल निगरानी जारी है। वज़ीर आला पंजाब खुद को भी तमाम इंतजामात की मॉनिटरिंग कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर दही खवातीन में मुफ्त मवेशियों की तकसीम शुरू। पंजाब के 13 अजला में पहले मरहले में मुफ्त मवेशी फराहम किए जा रहे हैं। तलाक याफ्ता और बेवा दही खवातीन उम्र 55 साल तक प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। गुज़श्ता 5 बरस में सरकारी स्कीम से मवेशी लेने वाले दोबारा अहल नहीं होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि दही खवातीन को माशी खुद मुख्तारी देना तरजीह है। दही खवातीन को पायदार रोजगार दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, मुआहदे का मकसद खाम तेल पर इन्हिसार कम करना, सिविल एटमी तवानाई की तवील मुद्दती शराकत दारी है। अमरीकी कंपनियां सऊदी के सिविल जौहरी मंसूबों में ताउन करेंगी। मुआहदे में जदीद टेक्नोलॉजी, तरबियत, तकनीकी मुआवनत शामिल। कांग्रेस की मंजूरी से अमरीका सऊदी ताल्लुकात में नया बाब खुलेगा। और ज़ोहरान मुमदानी का अमरीकी हुकूमत से नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। मैंने कहा कि नेतन्याहू जंगी जराइम के जिम्मेदार हैं। नेतन्याहू ने 73,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल किया। इस्राएली वज़ीर आज़म ने हजारों बच्चों की नस्लकुशी की। अमरीकी हुकूमत से नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा करता हूँ। आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू पर मुकदमा चलाने के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हूँ। हुकूमत के पास ICC के वारंट पर अमल दरामद करने का इख्तियार है।